Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about Foundation Course English Unit First, Lesson First, Where is Mind Without Fear, जिसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर born 1861, dead 1941, was Indian poet, philosopher, musician and artist who received Bengali literature and music in the late 19th and early 20th countries. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861, मृत्यु 1941 में हुई थी। वे एक भारतीय कवि, दार्शनिक, संगीतकार और चित्रकार थे जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को 19वीं और 20वीं शताब्दी के मोड़ पर एक नई दिशा दी थी। Known as Gurudev, he became the first non-European to win the Nobel Prize in 1930 for his collection of poems Gitanjali. His works celebrates human dignity, freedom, and the beauty of nature while often addressing themes of social reform and unity. रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। वे एक पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें 1913 में उनकी कविता गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके साहित्य में मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाया गया है और साथ ही सामाजिक सुधार और एकता का विचार शामिल है। Born in a distinguished Bengali family in Kolkata, Tagore grew up in a culturally rich environment with early exposure to literature, art and music. He began writing poetry at a young age and went on to become a prolific writer, producing novels, short stories, essays and plays. टैगोर जी का जन्म कोलकाता में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। टैगोर जी का पालन पोषण संस्कृति रूप से समृद्ध वातावरण में हुआ। उन्हें साहित्य, कला और संगीत का प्रारंभिक परिचय प्राप्त हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वे एक अत्यंत उत्पादक लेखक बने, जिन्होंने कविता, लघु कथाएं, निबंध, उपन्यास और नाटक लिखे। Tagore was also deeply involved in India's struggle for independence, although he often advocated for non-violence and spiritual freedom over political conflict. टैगोर जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक टकराव की बजाय आध्यात्मिक स्वतंत्रता और अहिंसा का समर्थन किया। Tagore composed India's national anthem Jan Gan Man and Bangladesh's national anthem Amar Sonar Bangala, reflecting his influence beyond borders. He was a true polymath whose legacy continues to inspire people worldwide through his vision of harmony, peace and humanism. टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनर बांग्ला लिखा, जो उनकी सीमाओं से परे प्रभाव को दर्शाता है। वे एक सच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिनकी विरासत आज भी लोगों को शांति, मानवता और समृद्धि के उद्देश्य से प्रेरित करती है। Where the Mind is Without Fear, about the poem. The poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore is a powerful call for freedom and dignity. Originally written in Bengali and included in his collection Gitanjali, which won the Nobel Prize in Literature in 1913. टैगोर जी की प्रसिद्ध कविता जहां मन निडर हो एक आदर्श समाज की आकांक्षा को दर्शाती है। यह कविता उनके महाकाव्य कृति गीतांजलि में शामिल है, जिससे उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where birds come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm toward perfection, where the clear stream of reason had not lost its way into the dreary stem of
dead habit where the mind is led forward by three into every winding thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Where the mind is without fear and the head is held high. इस पंक्ति के बारे में हम लोग समझेंगे। इस पंक्ति में टैगोर जी कहते हैं, जहां मन निडर हो और सिर ऊंचा रहे, अर्थात यहाँ टैगोर जी एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए कहते हैं जहां लोगों का मन भय मुक्त हो और वे अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकें। इसका अर्थ है कि लोग बिना किसी डर के अपने अधिकार के साथ जिएं। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान की स्वतंत्रता हो जिससे सभी को समान रूप से शिक्षा और जानकारी प्राप्त हो सके। वेयर द वर्ल्ड हैज बीन नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां दुनिया घरेलू दीवारों से नहीं बटी हो। टैगोर जी एक विश्व की कल्पना करते हुए कहते हैं जहां के लोग समुदाय जातियों में ना बटे, सब कोई एकजुट रहकर रहें। Where birds come out from the depth of truth, जहां शब्द सच्च की गहराई से निकले। इस पंक्ति में टैगोर जी सच्चाई और ईमानदारी पर जोर देते हुए कहते हैं समाज में बोलचाल और संवाद सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। Where tireless striving stretches into arms toward perfection, जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। टैगोर जी कहते हैं निरंतर प्रयास और सुधार की भावना को दर्शाता है। यह बताता है कि समाज निरंतर प्रगति की दिशा में कार्य करना चाहिए। Where the clear stream of reason had lost its ways into the dreary desert stand of dead habit, जहां तर्क की स्पष्ट धारा अपनी राह खो नहीं जाती। तर्क और बुद्धिमत्ता का महत्व किया गया है। निर्णय और कार्य तर्क संगत होने चाहिए, ना कि विश्वास या अंधविश्वास या बुरी आदतों पर आधारित। Where the mind is led forward by three into every winding thought and action, विचार और क्रिया का विस्तार, जहां मन तुम्हारे द्वारा आगे बढ़ाया जाता है विस्तृत विचार और क्रिया की ओर। यह पंक्ति सुझाव देती है कि समाज को खुले विचारों और व्यापक क्रियाशीलता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे नव विचार और विकास संभव हो सके। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में है पिता मेरी देश आगे जागे। अंत में टैगोर एक मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां पर हर व्यक्ति को आत्म